2:21 हेलो क्या हेलो सर मुबारक हो सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह भाई उम्र करके हैं माशाल्लाह मुबारक हो अस्सलाम वालेकुम शहजादे तो हैं ना साहब कैसे हैं सर? यहाँ पे हाँ अंदर आ जाए ना अंदर आ जाए पहले फ्लोर पे आएंगे तो शक्ल में आ जाए अच्छा आ जाए आओ जी अच्छा कैसे हैं आप ठीक है माशाल्लाह कराची वाले भी पहुँच गए चलो ये देखो निकल आओ सर ये इधर आ जाओ ये बंसो थैंक यू और थैंक यू कौन सी भाई वो क्लब करवा दिए ठीक है उनको भी ले आए मैं नहीं जानता ठीक है ठीक है मैं ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ये भी ਹਾਂਜੀ ਆਗੇ ਇਹ ਖਾਸਾ I, Mario Bassi, pay my heartiest gratitude and warm welcome to all of you on behalf of First Global Congress on Traditional Medicine and Nursing Care. First of all, I would like our honorable guests, please come on stage. Dr. Professor Mahmoodul Haq Abbasi Sahab, please sir. Lal Muhammad Tahir Dawa, Brigadier Professor Dr. Muhammad Salim, and Dr. Leila, please, all of you come on stage. Please, all of you give a big round of applause for our honorable guest. Miss Lilia. Please give a big round of applause. Being Muslim, we should start our events with the name of Almighty.
was the most beneficent and benevolent. So I request to Dr. Qari Abdul Halim Saab, please come and stay for recitation of Holy Quran. Dr. Qari Abdul Halim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Holy Prophet, peace be upon him, is the beacon of light for us, and we should remember him. So, I would like to call Dr. Muhammad Rafiq to come on stage for Naat. Please. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम
का या हबीब अल्लाह। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सा दोनों। और जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है। फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आपके नूर का परता है महोअंजुम पर। वाइज तंग नजर को नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। I'd like to call Professor Imran Lodi, Principal, Ajmal Taibal College, Rawalpindi. Please, sir, come on stage. In traditional medicine, Professor of Unimedicine, Homeopathic Alternative Medicine Council, Scientific Awareness, Chairman and Organizer. Please put your hand together for Dr. Muhammad Amin Beg for welcome address. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome international delegation and national, and I am happy today. And after this, the coming scientific session will help you gain much needed insighting into new research in the field of traditional medicine. Thank you, ladies and gentlemen, for your active participation. As we all gather here to acknowledge the first Global Congress on Traditional Medicine and Nursing Care. It's linked with the WHO Traditional Medicine Strategy 2014 was developed and launched in response to the World Health Assembly and resolution on traditional medicine. For scientific session and presentation, I would like to call Professor Dr. Sajid Qayyum from Lahore. He is MBBS, FRCP, MD, PhD, Clinical Emergency and by Acupuncture. Please, sir, give you a big round of applause for Dr. Sajid Qayyum. How many of you are homeopathic doctor? Kindly raise your hand.
And how many you are allopathic doctors? Very good. And how many are Hakims? And what do you like, that I should speak in English or I should speak in Urdu? It is up to you. नहीं, that depends which language you like. It is up to you. All of their. You will say they first are- time. You are expecting the understanding of your language. No, not my language. मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो लोगों को कन्वे हो। उर्दू में कर दे। उर्दू ठीक है। अच्छा, बात ये है कि अब यहाँ मिक्स लोग बैठे हैं, हकीम भी हैं, होम्योपैथ भी हैं और मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं। एक्यूपंक्चरिस्ट कितने हैं वो भी ज़रा हाथ खड़ा करें। 1 2 3 बस। इसका मतलब ये है कि एक्यूपंक्चर जो हैं वो अकलियत में हैं और मैं अच्छा सर यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, वो और ज़्यादा अकलियत में हैं, सिर्फ 2 लोग। तो मैं और डॉक्टर सलीम साहब, ब्रिगेडियर डॉक्टर सलीम साहब, हम ये कह रहे थे कि एक्यूपंक्चरिस्ट चूँकि सबसे कम हैं इसलिए इनमें इत्तेहाद ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल जो असल बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों का एक फ़र्ज़ है कि आपने पेशेंट का इलाज करना है। तो आप लोगों का जो टारगेट है वो पैथी नहीं होनी चाहिए। आप बेशक अगर एलोपैथ हैं, होम्योपैथ हैं, हमारे एक दोस्त थे वो कहा करते थे कि एलोपैथी और होम्योपैथी से ज़्यादा बेहतर है सिम्पैथी, जो कि पेशेंट को ज़्यादा पसंद आती है। तो ये है कि अब देखें मरीज़ को क्या चाहिए, ये चीज़ को अंडरस्टैंड करें। मरीज़ को रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको अपना सोचने का अंदाज बदलना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि जी मैं एलोपैथ हूँ तो अब एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है तो मैं इस मरीज़ को मायूस कर दूँ। तो बेस्ट ये होता है कि आप जो है या तो दूसरा तरीका इलाज सीख लें या फिर पेशेंट को रेफर कर दें किसी होम्योपैथ के पास। एक चीज़ याद रखें, दुनिया का कोई भी तरीका इलाज जो है वो मुकम्मल नहीं है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसी ने ये तमाम तरीके जो बताए हैं, इसलिए कोई भी तरीका इलाज परफेक्ट नहीं है। अब अगर आप बीइंग पाकिस्तानी सोचें, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुने। एक आपके पास जो हमारे पास इंडिया में, पाकिस्तान में एलोपैथी नहीं थी, ये हमारे पास कहाँ से आई? इंग्लैंड से आई। कोई जवाब भी तो साथ दें, ठीक है ना? पाकिस्तान से तो ये इसकी पैदावार नहीं है। जर्मनी से हमारे पास होम्योपैथी आई, चाइना से एक्यूपंक्चर आया, यूनान से तिब आई। तो आपका अपना क्या है? आयुर्वेदिक भी इंडिया से है, पाकिस्तान उसकी बड़े सगीर की कह लें, लेकिन वो भी बेसिकली इंडिया से या उससे भी बेटर ये है कि नेपाल से है, हिमालय से उसका स्टार्ट हुआ था। तो आपके लिए जो सबसे सगा कौन है वो आपका पेशेंट है। इसलिए बराए करम मरीज के साथ मुखलस हों, तरीका इलाज के साथ मुखलस ना हो। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्लिनिकल इमरजेंसीज की बात करते हैं। मैं आपको एक एडवाइस करना चाहता हूं। आप जो भी तरीका इलाज आप अपना रहे हैं, अगर आपको मरीज की शिफा से गर्ज है तो उसको सेहत देने की कोशिश करें। मरीज ठीक होगा, पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। आपकी जो इंटेंशन है वो मरीज की सेहत की तरफ होनी चाहिए। आप अच्छे मुआलिज तभी बनेंगे कि अगर आपके पास पेशेंट आता है तो एटलीस्ट आपके पास क्लिनिक से या मतब से वापस जाने से पहले आपका एक टारगेट होना चाहिए कि वो कम से कम 20 से 25% आपसे ठीक होके जाए। मैंने बहुत से डॉक्टरों को देखा है, हकीमों को देखा है, होम्योपैथ को देखा है कि वो मरीज को बिठा लेते हैं उस वक्त तक जब तक मरीज ठीक काफ़ी हद तक ये नहीं कह देता कि डॉक्टर साहब मुझे अब तसल्ली है, मैं पहले से बेहतर हूँ।
जब तक मरीज का बुखार थोड़ा सा कम ना हो जाए, उसकी दर्द थोड़ी सी कम ना हो जाए, उसकी उल्टियाँ ना बंद हो जाएं, वो मरीज को जाने नहीं देते। तो ये आप बेशक कई डॉक्टरों के पास रश ज़्यादा होता है, लेकिन आप रिजल्ट ओरिएंटेड अगर डॉक्टर या मुआलिज बनते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसमें मैं क्लिनिकल एमरजेंसीज की बात करता हूँ। यहाँ स्लाइड्स नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको ज़ुबानी बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्यूपंक्चर का अगर आप सीख लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक्यूपंक्चर को आप एलोपैथी के साथ भी मिला सकते हैं, होम्योपैथी के साथ भी मिला सकते हैं, एक्यूपंक्चर को आप तिब के साथ भी मिला सकते हैं। किसी तरह की एक्यूपंक्चर की कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अब एक चीज़ बताइएगा, फॉर एग्जाम्पल एक मरीज आपके पास आता है, वो दमे का मरीज है। दमे का सब लोगों को पता है, कोई ऐसा तो नहीं जो ब्रोंकियल अस्थमा को ना समझता हो। तो वो उसको अगर आप जो भी थेरेपी देते हैं, कम से कम नहीं तो मेरा ख्याल है कि अगर दमे के मरीज को अटैक हुआ है दमे का, तो उसको जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम है, मेरी क्लिनिक पे कई दफ़ा आया है मरीज अमाइनोफाइलिन और डेकाड्रॉन या अमाइनोफिलिन या कोई और स्टीरॉइड का टीका लेके आते हैं, उनके हाथ में पकड़ा होता है कि जनाब डॉक्टर साहब ये दोनों टीके मिला के इंट्रावीनस लगा दें। लगा के भी हमने देखा है, हॉस्पिटल्स में भी लगा के देखा है, मरीज के सांस को जो फ़ायदा होता है वो कम से कम नहीं तो 20 मिनट से लेकर आधा घंटा लगता है। क्या ख्याल है जी? होम्योपैथी में भी आपको एक पेशेंट का दमा ठीक करने में कितनी देर लगती है? जवाब दें जी। कोई होम्योपैथ, काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किया था, घंटा लगता है। तो इसी तरह हिकमत में भी एमरजेंसीज जो हैं उनको ठीक करने के लिए वो एक टाइम टेकिंग जॉब है। एक्यूपंक्चर में सिर्फ एक पॉइंट है, आप समझ लीजिएगा, बाद में मुझसे समझ लें, या स्टेज पे बैठे हैं डॉक्टर अमीन बेग साहब एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, और हमारे सबसे बड़े एक्यूपंक्चरिस्ट ब्रिगेडियर सलीम साहब बैठे हुए हैं। एक्यूपंक्चर से पेशेंट दमे का अटैक ठीक होने में सिर्फ 1 मिनट भी कहें तो वो ज्यादा है। विद इन 10 to 20 सेकेंड्स हम मरीज को कहते हैं 10 गिनो। मरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनता है और उसका सांस बहाल हो जाता है। तो ये एक्यूपंक्चर का बहुत बड़ा कमाल है। लंग 6 एक पॉइंट है, यहाँ कलाई के ऊपर होता है, आपने सिर्फ वहां सुई लगानी है और उसी वक्त जो है वो विद इन 10 to 20 सेकंड जो है उसका सांस बहाल होना शुरू हो जाता है। एक नंबर 2, आपके पास कभी स्टिफ नेक का पेशेंट आया हो कि मरीज ने कहा हो कि जी मेरी गर्दन में अकड़ाव बहुत ज्यादा है, गर्दन दर्द कर रही है। आते होंगे, क्यों जी? आते हैं कि नहीं आते? थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें, इस तरह मुझे बात करने का मजा नहीं आएगा। आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे मैं किसी नॉन मेडिकल लोगों से बात कर रहा हूँ। आते हैं जनाब, आते हैं। हाँ जी, बोले, जवाब देना। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हैं, कम से कम जवाब तो देते हैं। तो ये है कि गर्दन अकड़ी के पेशेंट, शदीद दर्द, एक्यूपंक्चर में एक पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन 6, उससे हर गर्दी अकड़ी हुई गर्दन ठीक हो जाती है, वो भी विद इन 1 मिनट। बहुत ही हैरत अंगेज यहाँ पे होता है पॉइंट। और कई दफा मेरे पास पेशेंट आते हैं, सिर्फ उससे एक क्विज है, एक अकड़ी हुई गर्दन नहीं ठीक होती, बताएं कौन सी? आप सर बताएं। जिसमें सरिया आया हो, लेकिन वो सरिया असली ना हो, गरूर का सरिया हो। सिर्फ गरूर से अकड़ी हुई गर्दन ठीक नहीं होती, वरना एक्यूपंक्चर से 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से, और मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब आपने जादू कर दिया। तो ये आप करके देखें, आप खुद हैरान होंगे, समझ नहीं आती कि कैसे ठीक हो गया। मैं आपको कुछ और बातें सुनाता हूँ। ये तारीख का एक वाकया है। ये चुक पड़ी है कभी किसी को आप में से? बेशक आप मुआलिज हैं, लेकिन किसी न किसी को हो सकता है कोई पेशेंट चुक का आपके पास आया हो। बहुत आते हैं। अच्छा, चुक जो है ये, इसको हम अपनी इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट लो बैकिक। ये तारीख का एक वाकया है। 1972 में पाकिस्तान में अमेरिका का एक वजीर खारजा आया था, हेनरी किसिंगर, नाम सुना होगा किसी ने। वो बंदा खुफिया मिशन पे यहाँ से चाइना गया था
चाइना और अमेरिका के हालात ख़राब थे, सिर्फ वो ये मिलने के लिए गया था कि भाई शायद अगर मौज़ेतुंग और चुअन लाई इसको एग्री करें तो फिर वो प्रेसिडेंट्स की मुलाकात हो। आपको पता है प्रोटोकॉल यही होता है कि पहले फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, उसके बाद दूसरे। तो वो जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर था, जुल्फ़कार अली भुट्टो के त्यारे में वो गया था, दुनिया को यही शो किया कि हेनरी किसिंगर पाकिस्तान के दौरे पे आया। अब क्या है कि वहाँ उसने जब बातचीत की तो मौज़ेतुंग ने भी यस कर दिया और चुअन लाई ने भी यस कर दिया। अब वो खुश वापस आने लगा था तो उसको अपने कमरे में उसने कोई ऐसे अपना कोई बैग उठाने की कोशिश की तो वो उसको चुक पड़ गई, एक्यूट लो बैक शुरू हो गई। अब एलोपैथिक डॉक्टर को बुलाया, एलोपैथिक डॉक्टर्स चुक ठीक होने में, एक्यूट लो बैक शदीद दर्द हो, कितने दिन का रेस्ट मिलता है? 3 दिन का। आप हैरान होंगे, उन्होंने कहा जनाब 3 दिन से लेकर 5 दिन तक आपको बेड रेस्ट करना है, आपको इंजेक्शंस लगेंगे, आपको 2 इंजेक्शंस लगेंगे, एक फेल्डिन का लगेगा, एक वोल्ट्रन का लगेगा और सुबह शाम लगेंगे, और आपको जनाब साथ में वो क्रीमें लोकल लगाई जाएंगी, तब कहीं जाके आप ठीक होंगे और ट्रेवल करने के काबिल होंगे। उसने कहा जी मैं सीक्रेट मिशन पे हूँ, आप मुझे कहाँ फंसा रहे हैं, कोई और हल ढूंढे। चुअन लाई साहब वजीर आजम चाइना को बुलाया गया, उन्होंने कहा जी एक ही तरीका है, आप अक्यूपंक्चर करवा लें। उसने कहा जी वो क्या बला है? उसने कहा जी अभी करके बता देते हैं। एक अक्यूपंक्चरिस्ट को बुलाया, उसने एक पॉइंट हाथ की हथेली के ऊपर, आप में से किसी को पामिस्ट्री आती है? ये लकीर कौन सी होती है? हार्ट की, दिल की लकीर। ऐसे मुट्ठी बंद करें, जहां दिल की लकीर खत्म होती है एक कोना नोक बनती होगी, जरा अपनी अपनी मुट्ठी बंद करके देखें नोक बनती कि नहीं बनती। उस नोक के ऊपर बिल्कुल सीधी सुई लगानी है, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन 3। इस पे सुई लगाएं और उसी तरह मरीज को कहें 10 गिनो और उसकी चुक ठीक हो जाती है। और ये मल्टीपल टाइम्स मैंने किया है और वहां उसके साथ भी किया। उसने कहा जी ये क्या हो गया, आई एम कंफर्टेबली एबल टू ट्रेवल टू अमेरिका इवन। और उसने उसी तरह यहाँ आया और अमेरिका चला गया। सदर निक्सन ने पूछा जी कैसी रही मुलाकात? उसने कहा जी मुलाकात तो छोड़ो, वो मैजिक नीडल का मैं एक करिश्मा देख के आया। और उसके बाद अक्यूपंक्चर जनाब उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अक्यूपंक्चर प्रमोट किया, और इतना प्रमोट हुआ कि मैंने अपनी आंखों से देखा है अमेरिका और कनाडा में डॉक्टर जो अक्यूपंक्चरिस्ट है उसकी कंसल्टेशन $500 है, पाकिस्तान का 140 से ज़रब देकर सोच लें क्या बनता है, और डेली चार्जेस $200 है। तो ये अक्यूपंक्चर इतना इफेक्टिव चीज़ है। उसके बाद एपिलेप्सी और कोई हिस्टेरिया, ये मैं 3 बीमारियों का नाम लेने लगा, और मरीज बेहोश है, तीनों में से कोई भी चीज़ हो। एपिलेप्सी का हमारे पास हम लोग एलोपैथी में, होम्योपैथी में, तिब में हम इंतज़ार करते हैं कि मरीज़ का दौरा खुद ब खुद 5 मिनट में, 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। नो ट्रीटमेंट। फिनोबार्बिटोन का इंजेक्शन आता था जो कि बैन हो गया है, अब कोई अवेलेबल मेडिसिन नहीं है। जो भी एलोपैथिक डॉक्टर्स बैठे हैं, अगर किसी को पता है तो मुझे काइंडली मेरे नॉलेज में भी इजाफा करे। एपिलेप्सी का कुछ नहीं है। इसी तरह हिस्टेरिया, और ख़ास तौर पर एक ऐसा मरीज़ जो डाम लगा के बेहोश हुआ है, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे यहाँ क्या है जी, गोल्डन इंजेक्शन लगाया जाता है डाम वाले को, पानी भिगो के, पानी भर के लगा दिया जाता है। अक्यूपंक्चर में एक किडनी 1 है पाँव के नीचे, ये तसव्वुर करें, पाँव ऐसे फोल्ड करें तो ये सेंटर में आता है, किडनी 1 अक्यूपंक्चर पॉइंट है। 3 डिजीजेस के लिए, बेहोश मरीज के लिए, एपिलेप्सी का अटैक हो, मरीज को झाग निकल रही हो, आप लगा दें। अब आप कहेंगे हर चीज 10 सेकंड में कैसे ठीक होती है? दिस इज द मिरेकल ऑफ अक्यूपंक्चर। विद इन 1 मिनट उसका एपिलेप्सी अटैक भी ठीक होगा। विद इन 1 मिनट अगर हिस्टेरिया की पेशेंट आई है उसका भी अटैक ठीक होगा और एपिलेप्सी का भी। तो ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ एक किडनी 1 से ठीक हो जाती। तो ये अक्यूपंक्चर के, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। हम श्रीलंका जाते रहते हैं क्योंकि अक्यूपंक्चर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है श्रीलंका में। तो हम लोग जा रहे थे तो एक लेडी डॉक्टर थी, वजीहा नाम था, फैसलाबाद की गायनाकोलॉजिस्ट थी।
उसको सीवियर मीग्रेन का अटैक हुआ। उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। एयर होस्टेस और बाकी लोग जनाब उसके पास इकट्ठे हो गए और वहां अनाउंसमेंट की, अगर जहाज में कोई प्लीज कोई डॉक्टर है तो काइंडली आ जाए, एक पेशेंट की हालत बड़ी सीरियस है। मैं गया, मैंने कहा जी आपके पास कोई दवाई है? उन्होंने कहा जी हमारे पास डिस्प्रिन होती है। बोले डॉक्टर ने कहा जी मुझे तो पहले ही पेप्टिक अल्सर है, मैं डिस्प्रिन नहीं खा सकती, कोई अच्छी दवाई बताएं। उन्होंने कहा नहीं है। मुझे कहने लगी डॉक्टर साहब आप फिर कुछ करें। तो मैंने कहा जी बीबी आपको अगर माइग्रेन की शिकायत है तो आप मेडिसिन लेके घर से चला करें। उसने कहा जी मेडिसिन मेरे बैग में है, वो बुक हो गया है, जहाज के अंदर ही है, अब आप कुछ करें। मेरी जेब में वो अकुपंक्चर की जो थी ना सुइयों का एक पत्ता था। मैंने कहा जी मैं आपको अकुपंक्चर कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी वो क्या चीज़ है? मैंने बताया, मैंने कहा जी सुइयों का इलाज है चाइना का। उन्होंने कहा जी कर दें। 4 सुइयां मैंने उसको लगाई, LI4, उसकी बैक पे भी पेन थी, लंग 7 लगाया, हार्ट 9 लगाया और एक पेरिकार्डियम 6 लगा दिया। और ये सारी सुइयां वो हैं जो कि टेंशन को भी कवर करती हैं, फ्रंट साइड ऑफ द पेन हो उसको भी कवर करती हैं, बैक साइड की पेन को भी कवर करती हैं, साइड की पेन को भी कवर करती हैं। वो मुझे कहने लगी ये इससे मैं कितनी देर में ठीक होंगी? मैंने कहा जी आप 10 मिनट्स काउंट कर लें, अपनी घड़ी देख लें। आफ्टर 10 मिनट्स you will not only pain free but also be very much delighted and your mood will be elevated and you will feel very very happy। वो कहने लगे जी ये प्लस पॉइंट भी होगा। मैंने कहा यस प्लस पॉइंट भी होगा। अब ये है कि वो सीट पे बैठी हुई है, उसके सुइयां लगी हुई हैं और हर आने जाने वाला देख रहा है कि ये क्या क्या लगा हुआ है। और जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स में गया, मैंने कहा जी बताएं क्या हाल है? कहने लगे जी डॉक्टर साहब सेम जैसा आपने कहा है, मेरा सर दर्द भी ठीक हो गया है, मुझे मेरी समझ से बाहर है कि क्या हूँ ठीक हो गया है, लेकिन मेरे अंदर एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी आ गई है। ये अकुपंक्चर का ये भी बहुत बड़ा कमाल है कि वो आपके अंदर सेंस ऑफ हैप्पीनेस पैदा करता है। और ये जो डॉक्टर्स हैं वो अगर समझ सकते हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, कि जैसे ही हम पेन की या उसको सेंस ऑफ हैप्पीनेस वाली सेडेटिव मेडिसिन की नीडल्स लगाते हैं तो ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन और एनकेफ्लिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ना सिर्फ पेन खत्म होती है बल्कि सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी डेवलप होती है। तो इस तरह तकरीबन टाइम थोड़ा है, मैं इतना ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आप अकुपंक्चर, मेरी एडवाइस है कि आप जरूर सीखें। ये एक एक्स्ट्रा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अकुपंक्चरिस्ट इस वक्त ठीक ठाक इनकम भी उनको हो रही है। आपकी जो भी आपकी थेरेपी है उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाएगी और प्लस आपको एक आपका जो क्योर रेट है पेशेंट्स का वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अगर आप सीखना चाहते हैं अकुपंक्चर तो यहाँ इस्लामाबाद में डॉक्टर अमीन बेग साहब हैं, ये सिखाते भी हैं, तो इनसे नहीं सर नहीं सिखाते, सर तो महागुरु हैं, वो सिखाते नहीं हैं, लेकिन वो आप इन डिफिकल्टीज जाके आप अपनी वो कवर कर सकते हैं। जब अमीन बेग साहब लाजवाब हो जाएं तो सर से जाके पूछ लें। डॉक्टर साहब ये सर्टिफिकेशन वगैरह भी होती है इसकी? सर्टिफिकेशन जाहिर है जो आपको सिखाएगा वो सर्टिफिकेशन भी करेगा। लाहौर में तो मैं सिखाता हूँ, लाहौर में आई एम द पायनियर जो सिखाता हूँ, और भी लोग हैं, लेकिन लाहौर में अगर आप सीखना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। मैं बेसिकली एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, आपका वो तारुफ हो गया होगा। तो बहरहाल लाहौर का अगर कोई है वो मुझसे सीख ले, इस्लामाबाद का है तो डॉक्टर अमीन बेग साहब से सीख ले। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया जी। कोई सवाल पूछना हो तो बेशक आप बाद में भी पूछ लें। बहुत शुक्रिया जी। साइड इफेक्ट है अभी तक अकुपंक्चर, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल किया। अथॉरिटी बैठी है ना, उन्होंने कह दिया नहीं तो बस नहीं मैं बता तो दूं, अभी तक अकुपंक्चर का साइड इफेक्ट सिर्फ वही होगा जो अकुपंक्चरिस्ट की गलती से होगा। अगर आपने सुई स्टेरिलाइजेशन का ख्याल नहीं रखा, इन्फेक्शन हो सकती है, प्रॉपर तरीके से नहीं किया, तो इसलिए हम कहते हैं कि अकुपंक्चर में क्वैकरी नहीं हो सकती, इसलिए कि जिसको आता है वही लगाएगा सुई। बहुत शुक्रिया। Please give a big round of applause for our chief guest, Dr. Waheed Lashari, Deputy Director, Federal Ministry of Health. Please give a big round of applause for Dr. Waheed Lashari. Please sir, come up on stage. Come on stage.
Now I would like to call Professor Hakeem Dr. Sarfraz Ahmed Bhatti, Registrar, Taiba College, Gujranwala. Please sir, come on stage. Please give a big round of applause for Professor Dr. Sarfraz Ahmed Bhatti. For the second presentation, I would like to call Professor Dr. Zahir Shah. He is PhD, MD in Alternative Medicine, Chairman, Department of Political Science. Not available after 4:30. Okay. I would like to call Dr. Abdul Jalil Beg, Rawalpindi. He is MBBS specialist in nutrition. Please give a big round of applause for Dr. Abdul Jalil Beg. सॉरी जी, मैं लाहौर से शील्ड लाया था डॉक्टर अमीन बेग साहब के लिए, तो मैं ज़रा अपने फ़राइज़ से फ़ारग होना चाहता हूँ। डॉक्टर अमीन बेग साहब काइंडली आएँ। और मैं डॉक्टर, मेरे साथ आए हैं जी डॉक्टर बाबर साहब और डॉक्टर साहब उकाड़े से आए हैं। शाहिद साहब आ जाएँ, आप हम तीनों मिल के शील्ड देंगे उनको। सही आ जाए। हाँ जी। अगला आ जाए, अगला आ जाए। Honorable Chief Guest, delegates, my dear colleagues, and ladies and gentlemen. It looks astonishing that an allopath is leading the alternative medicine, but I have got sound reasons for it. Long time ago, when I was doing my house job, I got jaundice. When it did not respond and my bilirubin kept on increasing, I went to a non-herbalist who prepared a crude extract in my presence of some herb and asked me to dissolve it in water and take it frequently during the day. Within 2 to 3 days, the color of my urine changed, my appetite came back, and color of sclera turned up white. It was my first experience, and since then I am a student of alternative medicine, especially herbs. Gentlemen, due to the shortage of time, I will not go into the details, but will just touch the subject. I want to share my limited knowledge and experience with the learned scholars and participants of this Congress. Our GPs, during their daily practices, they come across most cases involving GIT, cardiovascular diseases, cases of malignancies, burns, and of course traumas of various natures. I will just touch the subject and briefly suggest the management from alternative fields and will jump to the next topic, keeping in view the limited time allotted to me. Those who are interested to know the details are cordially welcomed. After the session, then I will try to answer their questions. As I have mentioned earlier, the herb which gave me amazing results in jaundice was chicory. I personally worked on this vast subject of hepatitis and allied liver diseases and tried numberless combinations, but found 2 preparations with more than expected results. These are the combination of Jojoba solanum nigrum, that is black nightshade, Pronus domestica, lotus, and of course, Chicorium intubus. The second combination, that is of Rheum and Curcuma longifolia. This combination works better for hepatitis C. Another combination, which is in extract form, is of Funiculum vulgare, Solanum nigrum, intubus, and Acne millefolium. It has promising results in cases of cirrhosis of liver. Now I would like to call Professor Dr. Dr. Sarfraz Bhatti, Registrar, Taiba College, Gujranwala. Please sir, come on stage. Welcome to Agha Imran Khan. I would like to call Dr. Ajmal Beg, Dr. Tariq Mahmood. Please come in front seat. Please come front. Shahid Riaz,
IAMC Spot WHO Traditional Medicine Strategy 2014, UNO SDG says 2030. Please, sir, come stage for presentation. Please put your hand together for Sir Dr. Shahid Riaz. This organization, as they are going to be compatible with the routinely, conventionally or organized public health organizations. So I am representing recently retired from Senior Scientific Officer, National Institute of Health, Islamabad. Next. IAMC International Alternative Medical Council Islamabad is the largest organization working at national level, registered by the government of Pakistan, affiliated with Open International University of Complementary Medicine, Colombo, Sri Lanka. Next. Along with the routine activities of the board of the directors of IAMC initiated the training component on safety of patients' meals by promoting knowledge and skill among traditional and complementary medical practitioners following the guidelines of WHO Traditional Medicine Strategy and UN SDGs. इसमें सर थोड़ी सी गुजारिश ये है कि हम जहाँ पाकिस्तान में सब किस्म की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइमरी टू टर्शरी केयर, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ होम्योपैथी और रजिस्टर्ड हकीम्स का भी आउटलेट है, हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं। और हर एक सिस्टम में आप वो देखते हैं कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, या उर्दू में हम उनसे कहते हैं कि जी परहेज़ कर लें। वो जो परहेज़ का अमल दखल है, ये डाइट का अमल दखल है, ये न्यूट्रिशन का मॉडर्न साइंस का अमल दखल है, उससे मैंने कोशिश की है कि ब्रिज करूं और हम अपने जैसे लोगों को एजुकेट करें, और उसमें ये जो फूड सेफ्टी का कंपोनेंट है हम इसको एक ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर के आए। जी नेक्स्ट। Good health and well-being, and on other side, one of the most significant goal, number 3 of UN SDGs about good health and well-being, emphasizes training of health workforce for preventive healthcare measures through strengthening the capacity of health risk assessment, early warning system to reduce illness concerning food and water safety issues. ये डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा एपिडेमिक्स आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते सुनते रहते हैं, और ये ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के इदारे, बेशुमार NGOs इस पर काम कर रही हैं। हम इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स को ट्रेन करें, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग्स कंडक्ट करें, और उनको फिर लॉन्च करें कम्युनिटीज़ में और सोसाइटी में अपना जा करके काम करें अवेयरनेस के ऊपर। जी नेक्स्ट। Safety of patient meal. Food safety is a growing global concern because of its continuing importance for the public health. देखिए पब्लिक हेल्थ के इश्यूज जितने भी हमारे पास हैं, जो हकीम हजरात, होम्योपैथ हजरात, डॉक्टर, फिजिशियन हजरात देखते हैं, फूड सेफ्टी मोस्ट प्रोबेबली इज द number 1 health problem. Foodborne diseases are one of the most widespread public health problems in the world and an important cause of reduced economic productivity and growth. People suffered from communicable and non-communicable diseases because of consumption of contaminated food and water. देखिए डॉक्टर साहब, हकीम हजरात, ये जो कंटामिनेटेड फूड के 2 बेसिक सेगमेंट हैं हमारे स्क्रीनिंग कंपोनेंट में। एक वो है जो कि टॉप प्रायोरिटी पर है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स। माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन से डायरिया, डिसेंट्री रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, और ये जो दूसरा क्रॉनिक डिजीज का, नॉन इन्फेक्शियस क्रॉनिक डिजीज का चैप्टर होता है, उसमें कैंसर और बहुत सारे इन्फ्लेमेशन और सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। जी नेक्स्ट। The contributing factor to foodborne illness are contaminated ingredients obtained from unsafe sources. ये हमारे वो कंटेंट्स हैं जो कि हम अपने लेक्चर में, मेथड में एक्सप्लेन करते हैं, और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के लिए, और उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशंस अरेंज करते हैं और रिपीट डिमॉन्स्ट्रेशंस लेते हैं। ये सारी छोटी छोटी लाइंस हैं, एक लाइंस है, और एक लाइन के सर्टेन मीनिंग्स हैं और सर्टेन एप्लीकेशंस हैं। जी नेक्स्ट। High level of microbial contamination are frequently reported in hospital foods.
ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है सर। मेरा अपनी भी पब्लिकेशंस है, मेरे जैसे बेशुमार और साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ये जो स्ट्रीट वेंडर्स और राउंड द हॉस्पिटल जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ पर ये बड़ा फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम पाया जाता है। इसे हमने भी समझने की कोशिश करनी है और इसके लिए थोड़ी बहुत अपनी कंट्रीब्यूशन पेश करनी है। जी नेक्स्ट। और इसकी इंशाल्लाह हम आपको ये प्रिंट आउट भी दे देंगे तो आप उसको अच्छे तरह से स्टडी भी कर सकते हैं। रिस्क ऑफ फूड बॉर्न डिजीज कैन बी इफेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टेबल लिमिट विद द एप्लीकेशन ऑफ HACCP। ये वो सिस्टम है जो मैंने एमरो ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन कायरो इजिप्ट से सीखा अंडर द अम्ब्रेला ऑफ WHO एंड CDC विजिट चाइना। हैजर्ड्स एनालिसिस एट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसकी मेरी ख्वाहिश है कि इसे हम लॉन्च करें, ऐसे ऐसे एजुकेट करें और प्रैक्टिकली अप्लाई करें अपने सिस्टम पर। Adequate risk management that incorporates staff training, regular food safety auditing and testing can be ensure food hygiene and food safety. HACCP is a scientific and systematic approach for identification, assessment and control of hazards during the whole chain of food production to consumption, integrating control with the design of the process instead of the traditional ineffective system of the end product testing. Usually जो प्रैक्टिस हो रहा है end product testing होती है। फॉर एग्जांपल फूड इंस्पेक्टर और हमारे जो लेजिस्लेटिव कंट्रोलर्स हैं वो एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, एंड प्रोडक्ट जाकर के टेस्ट हो जाता है, ये फेल हो जाता है, ये पास हो जाता है, या उसके ऊपर वो कर देते हैं, फाइन कर देते हैं। इस सिस्टम के साथ हम जो हैंडलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हॉस्पिटल कैटरिंग है या फ्लाइट कैटरिंग है या मास प्रिपरेशन है, तो उस वक्त उन लोगों को एजुकेट करना, उनके लिए CCP क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट डिज़ाइन करना और CCP भी क्रिटिकल कंट्रोल डिज़ाइन पर उनका कंट्रोल करवाना, ये सिस्टम की ब्यूटी है। जी नेक्स्ट। एम The training session offers an opportunity to empower traditional and complementary medicine practitioners to run realistic and sustainable food safety skills for the safety of patient meat during the process of illness recovery and rehabilitation. इससे हमारा ताल्लुक है, हम आप सब पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस, कि जब वो बीमारी आती है, रिकवरी के फेज में होते हैं या हम उसे रिहेबिलिटेट कर रहे होते हैं। तो इन तमाम स्टेजेस में फूड एंड न्यूट्रिशन, पर्टिकुलरली फूड एंड वाटर सेफ्टी का बेसिक रोल है जो कि हमने अप्लाई करना है। जी नेक्स्ट। These are the some of the objectives in our system to evaluate the existing food safety system of food service operations, to assess the load of contamination of food and water being served, to identify organisms potentially causing foodborne illness in the food catering system, to assess the status of the personal hygiene of food handlers, to identify critical control points, to applications of HACCP techniques. HACCP सिस्टम जहां हम लॉन्च करेंगे वो इन तमाम चीज़ों को क्वालिफाई करके आपको उसका आउटकम देगा और उसके नेक्स्ट डे आपकी प्रोडक्ट में या आपकी प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट ले आएगी। जी नेक्स्ट। आउटकम ऑब्जेक्टिव इज इंश्योर्ड पेशेंट्स ट्रेडिशनल complementary medicine practitioners, dietitians and nursing staff health by consuming safe and nutritious meals and refreshments for the improvement of nutritional status leading to well-being and developing immunity against that disease. अगर इन्फेक्शन फ्री सिस्टम में हम रहेंगे, फूड एंड वाटर सेफ्टी होगी। देखिए सर, फूड और वाटर सेफ्टी में लिमिट से छोटी सी चीज़ मैं कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल पोलियो इज वन ऑफ द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड बाय प्रोडक्ट बॉर्न, बट जो कंटामिनेटेड फूड का लिंक है वो इसमें हम ब्रेक आउट कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। जी नेक्स्ट। दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स यू मे रीड इट फ्रॉम आवर बुकलेट। जी नेक्स्ट। ह्यूमन रिसोर्स, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आज तक सीखा, जिसकी मैंने कोशिश की कि जी मैं पब्लिक तक जाऊं और लेके जाऊं, जो स्किल डेवलप करूं, ये वो लोग जिसे हम कहते हैं हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर से और डिफरेंट ग्रुप से मैं काम करते करते यहाँ तक आप तक पहुँचा हूँ। गुड डाइट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर गुड हेल्थ, enables the body to grow, keep warm, maintain and repair itself. वो जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हैं, जो कि बॉडी में इनबिल्ट प्रोसेस हैं, वो इसी नरिशमेंट न्यूट्रिशन से हमें सपोर्ट करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ईट जस्ट एनफ टू, ये सारी चीज़ें आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता बुकलेट में रीड कर लोगे। जी नेक्स्ट। टू जज एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेशेंट कंसर्निंग, जिसे हम फीड कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसकी नीड्स को असेसमेंट करना।
बस ये ठीक है जी, ठीक है फर्स्ट क्लास है जी जी। जी जी, ये इसकी जो ज़रूरियात है, जो कि पेशेंट कंसर्न हैं, वो भी हमने इसी में डिज़ाइन की, आपको देते हैं जी सर। नेक्स्ट, अ गुड standard of personal hygiene is of great importance to all staff working in the food production food service area। ये जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात में करता हूँ, उसमें पर्सनल हाइजीन फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आप को एजुकेट कर रहे होते हैं कि जी वेयर वी स्टैंड। जी नेक्स्ट, contamination and food spoilage। when food is contaminated, it is unsuitable for eating। If contaminated food is eaten, it causes a simple or more severe attack of food poisoning, resulting in sickness, sometimes medical emergencies। जो so many times of hospitals, newspapers पर इनमें देखते रहते हैं बहुत। जी नेक्स्ट, Cross contamination occurs when food items are incorrectly stored। ये हमारी स्टडी, हमारी डिज़ाइन, हमारी टीचिंग, ट्रेनिंग स्टोरेज से, रॉ मटेरियल की स्टोरेज, रॉ मटेरियल की QC से या क्वालिटी कंट्रोल मैयर से हम शुरू करते हैं। वर्क सरफेसेस फॉर पुअरली क्लीन, जहाँ पे हमने प्रोसेस करना है उसको हम देखते हैं, यूटेंसिल इक्विपमेंट करते हैं, फूड कॉन्टेक्ट सरफेसेस करते हैं। अगेन कमिंग टू ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज आवर हैंड्स। तो पर्सनल हाइजीन और हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस को देखते हैं और आगे लेकर के चलते हैं। जी, वाटर सिस्टम, जब हम बात करते हैं फूड एंड वाटर कंटामिनेशन की, तो दिस इज द समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द पेशेंट कैटरिंग सर्विस रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेफ वाटर। देखिए हम सब हर तरफ पानी पानी अल्लाह पाक ने दिया है, लेकिन शायद ये सेफ वाटर डे बाई डे नापेद होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कास्ट बढ़ती जा रही है, वक्त के साथ साथ उसकी कास्ट भी बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ ऑल द कंटामिनेट पॉल्यूटेड अराउंड अस। इन मैनी फूड प्रिपरेशन वाटर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। जो समझने की बात है, बहुत सारी चीज़ें हम ऑफर करते हैं, पेश करते हैं, लेकिन उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो बिगर पोर्शन है, वो हमारा वाटर ही है। जी नेक्स्ट, जी नेक्स्ट, ये फिर वो पढ़ लेंगे जी। If water system is not kept clean, the bacteria can easily multiply in storage tanks and distribution system। देखिए वासा, म्यूनसिपलिटी, CDA वगैरह वगैरह हमें ट्रीटेड वाटर सप्लाई करते हैं, पोर्टेबल और ड्रिंकेबल वाटर, और उसकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर होती है और क्लोरीनेशन प्रॉपर होती है। लेकिन हमारी स्टडीज़ हैं, मेरे जैसे बेशुमार और लोगों की स्टडीज़ हैं, तो वो जब 2 स्टेप पर आता है तो उसमें क्लोरीन जीरो हो जाती है। रेजिडुअल क्लोरीन शुड बी 0.3 पार्ट पर मिलियन पर लीटर, बट एट द 2 स्टेप वो सारी कंज्यूम हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट कंटामिनेशन। जो बस्ती की कंटामिनेशन, स्टोरेज टैंक की, पाइपलाइन की, वो सब उसको डिटेरिएट कर देता है और एट द एंड कंज्यूमर में और जगह में लेते हैं, वो फिर कंटामिनेट होता है। तो इसके हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक सेटअप में, अपनी डोमेस्टिक प्रिपरेशन में, और उनके लिए द पोर्टेबल वाटर शुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मैं रिप्रेजेंटेटिव, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और WHO की गाइडलाइन पर फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रोविजन हम डिज़ाइन देते हैं। जी नेक्स्ट, द पेशेंट फूड catered need to ensure that the use of water is maintained to the highest standard, and the food handler must be adequately trained in safe water usage and proper control mechanism maintained to ensure that the water does not become a source of contamination। देखिए हमारी बॉटल्स के भी इश्यूज आते रहते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने सो मैनी टाइम अखबारों में पढ़ा होगा। तो हमें कंज्यूमर को खुद और पर्टिकुलरली हमारे पेशेंट्स को, जब वो हाई रिस्क पर होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन, कोई मैकेनिज्म करना है कि जी उनको हम कंटामिनेशन से बचा लें। जी नेक्स्ट, डॉक्टर साहब ये हमारे यहाँ जो वाटर को टेस्ट कराना इंतहाई मुश्किल है। मैं लिव इन इस्लामाबाद और कई दफ़ा मैंने सोचा कि वाटर को टेस्ट कराऊं, तो ये जो आपने इंस्टीट्यूट का कहा है छेड़ के अंदर यहाँ जाओ, तो वो एक तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, एंड दे चार्ज 2,500 रुपीज़ फॉर अ सिंपल टेस्ट। मतलब इस चीज़ को तो ऐसा होना चाहिए ना कि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक चीज़ें जनरल लेबॉर्ट्रीज भी चीज़ कर सकें, ताकि अवेयरनेस है, लोगों को पता तो चले पानी साफ पी भी रहे हैं कि नहीं पी रहे। सही फरमाया सर। इसमें ये हमारी लिमिटेशंस हैं, मतलब ये आजकल जैसा भी ये चल रहा है क्राइसिस और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ये तो अब है, लेकिन जनरली ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट डिकेड्स आई एम जब मैं आपकी एज ग्रुप में था तो हम 300 में करते थे, हम डोर टू डोर भी जाते थे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिमोट एरिया में भी काम किया। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ अनदर डिबेट, लेकिन ये है कि ये होना चाहिए। आई एम 100% एग्री विद यू, दैट्स वाई हम अब इन प्लेटफॉर्म पर आए हैं कि ताकि हमारे ये जो हकीम हजरात हैं, होम्योपैथ्स हैं, लेकिन ये जो अपना काम कर रहे हैं, तो ये मेन फ्रेम
मेन लाइन के जो इश्यूज हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो हेल्थ थ्रेट्स हैं, उनको भी देखें, सीखें और अप्लाई करें। ठीक है, अगर हम अपने घर में, मैं चाहता हूँ कि जी मेरे बच्चे सेफ हो जाएं, तो व्हाई नॉट अदर्स। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है जबरदस्त। इसके तहत अब ये देखें ना, वो जो 3000 या 3500 मेरे ख्याल लेते हैं सर, नॉट जस्टिफाइड, नहीं अच्छा लगता, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज बियॉन्ड अवर, मतलब वो हियरार्की है, सारा सिस्टम है वो जिसमें चल रहा है। ये जो एंड प्रोडक्ट की बात है ना, उसमें तो वही हो रहा है कि जी सैंपल टेस्ट करा लें। अच्छा देखिए मजे की बात है, अगर आप लोग बोर नहीं हो रहा है, तो ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी फॉर ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर और WHO गाइडलाइंस, एक तो हम ये कंज्यूम कर रहे हैं अपनी सिटीज़ में, जिसे कि हम कहते हैं हमारी ये जो सरफेस वाटर है, और दूसरा डे बाय डे सरफेस वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से हम शिफ्ट हो गए हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है सर, वो बोर सिस्टम, अब बोर सिस्टम के ये जो मैंने केमिकल कंटामिनेंट का टच दिया है आपको, उसमें देखें आर्सेनिक इज द बर्निंग इशू। ये बांग्लादेश में हमारा काम, इंडिया में कुछ वक्त हम इधर अफगानिस्तान और अपने सरहदी इलाकों में थे, लेकिन अब पाकिस्तान में रिपोर्ट होना शुरू हो गया। जी सर, ये जो इस किस्म की चीजें अब देखिए ना, वो और ये जी कॉपर, लेड, निकल, मर्क्यूरी, कोबाल्ट तो पीछे रह गए, बट आर्सेनिक इज द बर्निंग इशू। अब वो देखिए ये सोर्स टू सोर्स वेरी कर रहा है, मतलब एक बोर में है और चंद फुट पे दूसरा बोर दूसरे डोमेस्टिक होल्डर का बोर पे नहीं है, तो ये अशद जरूरी है कि उसकी क्वांटिटी मॉनिटरिंग की जाए और रेगुलेशन सेफ्टी और रेगुलेशन हो। जो बंदा बोरिंग कराए उस जाके टेस्ट कराए या उसको वो पब्लिक हेल्थ सेफ्टी जो है ना, उसे ब्रैकेट करके करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई उसमें वो मैंने रखा, और इंशाल्लाह इस पर हम करेंगे, डिबेट भी करेंगे, आपके सामने चीजें भी लाएंगे। और मेरी ज्यादा चीजें वही है जो कि HACCP मेरी अपनी पब्लिकेशन अमेरिकन फूड और फूड सेफ्टी में इस पर बेशुमार है, और वो जो डोमेस्टिक लेवल पर कंज्यूमर कर सकता है बियॉन्ड द कमर्शियल एक्टिविटीज। ये बड़ा अच्छा बिजनेस केस बनता है, जो आप कर सकते, बड़ा अच्छा बिजनेस केस बनता है, जहाँ पे भी आपकी बोरिंग हो रही है आप उसको टेस्ट करवाएं और मतलब उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन हो। जी सर, तो ये HACCP हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जितने भी WHO है, ये आपने देखें कुछ इन्फॉर्मेशन, ये जो रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिडक्शन और रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, ये जिसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं, वो सब इसमें समोया हुआ है। ये बेसिक्स हैं। और हकीम हजरात के लिए, हर्बल स्पेशलिस्ट के लिए गुजारिश ये है सर, अगर आप अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनलिस्ट फूड हमारे पास वो शुरू हो गया है काम इन्वेस्टमेंट का, लेकिन अगर हम GMP नहीं भी कर पाते ड्यू टू सम रीजन, एटलीस्ट वी शुड अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल्स। हम आपको ट्रेन करेंगे फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, और आप वो गाइडलाइन लें, उन गाइडलाइन को आगे अपने इम्प्लीमेंट कीजिए और बेसिस पर अपना प्रोडक्ट क्वालिफाई करें, और इस HACCP सर्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर दीजिए इंटरनेशनली। ठीक है, ये इसलिए भी ज़्यादा कमर्शियली भी इसकी इम्पोर्टेंस है। HACCP वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विद द प्री रेक्विजिट प्रैक्टिसेस। ये वो चीज़ें जिस पर हम ज़्यादा रिलाई करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ही हमसे इस पर इग्नोरेंस आ जाती है, विच इज कंप्राइज्ड ऑफ जनरल एक्टिविटीज इन influencing food safety such as food hygiene practices, cleanliness of food contact surfaces, pest control and environmental cleaning. For example, ये पैकिंग आप देखें ना, हर जगह आज तक की पैकिंग हो रही है, हम होम केयर चीज़ें कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, वो जितना भी सोफिस्टिकेटेड जो हमारी एक्सपीरियंस है, रॉ मटेरियल भी अच्छा हो जाता है, इधर तक अच्छा हो जाता है, वो जिस में वो पैक करके देते हैं, तो वो सारी 2-3 दिन की एक्सरसाइज एक्सपायर हो जाती है, और हम कंटामिनेशन अपने बच्चों तक घर ले जाते हैं। तो दैट्स वाई ये जो पैकिंग मटेरियल और फूड कॉन्टैक्ट सर्विसेज है, इनके लिए भी हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। जी नहीं, आप इसका सोल्यूशन भी बताएं, क्या इनसे अवॉइड किया जाए? नहीं, अवॉइड नहीं करें, क्या किया जाए? ये अप्लाई करें। अभी ये सोल्यूशन आ गया ना, जो सोल्यूशन ही हम बात करें, जो प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर साहब हमारे इधर दाएं बाएं, उनके लिए एक तो ये है कि जी मैं जाऊं लैब में जाकर के टेस्ट करा करके आ जाऊँ। ये टेक्निक जो है ये फील्ड टू टेबल है, मतलब है पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, इसके स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स में हमने क्या करना है, HACCP टीम असेंबल करनी या ट्रेनिंग करनी। फॉर एग्जांपल, हम एक हॉस्पिटल में हैं, हम इनके किसी एक हॉस्पिटल में हैं, उधर हम इनके 2-4 लोगों को लेंगे, ये बनाएंगे डिस्क्राइब प्रोडक्ट, हम अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे कि जी क्या है हमारे, ये वाटर प्योरिफिकेशन है, या हमने दाल चावल बनाना, या कोई खमीरा बनाना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, कंस्ट्रक्ट फ्लो डायग्राम, दीज आर द सॉल्यूशंस। प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस ही हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, लेकिन वो टाइम लिमिटेशन है, उसकी फ्लो डायग्राम हम लेंगे। ऑन साइड कंफर्मेशन ऑफ फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम मीन्स उसके स्टेजेस, स्टेप, पीलिंग, कटिंग, सोकिंग, सॉर्टिंग एटसेट्रा। आइडेंटिफाई लिस्ट
all relevant hazards and control measures. ये जो HACCP हमें बताती है, जो हम एजुकेट हुए हैं और फिर हम डिसिमिनेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, उस पर अप्लाई करने. डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. देखिए आपके और मेरे घर में हमें पता चाहिए कि कहाँ है वो क्रिटिकल कंट्रोल, कहाँ हो सकता है, हम कहाँ से पकड़ सकते हैं कि ये कंटामिनेशन ना आए. ठीक है सर. Establish a monitoring system for each CCP. जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उसको मॉनिटर करेंगे. Establish correction actions, उसके ऊपर correction अप्लाई करवाएंगे. Establish verification procedure. Establish documentation and record keeping. अगर वो फेलियर हो जाता है तो अगेन उस पर चले जाएंगे, अगर पास हो जाता है हम उससे गो थ्रू कर देंगे. जी नहीं. Eat fresh and be fresh. And thank you very much for listening. Yes, कोई क्वेश्चन आंसर यू में आस्क जी. क्वेश्चन आंसर जी जी. अगर बिलफर्ज हम बोर करते हैं उसमें से आर्सेनिक आ रहा है जी जी, तो अगर जितना भी हमारा प्लाट है उसमें लाजिम बात है जितने भी फ्लो हो रहा है वो सारे उसमें होगा जी जी. सर देन हाउ कैन वी रिड्यूस द आर्सेनिक फ्रॉम वाटर? हाँ, अगर देखिए सर आर्सेनिक की कंटामिनेशन वाटर में आ जाती है, इसके लिए देखिए हमने जब ये आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पे काम किया था ना, आयोडीन वाटर हो जाता है और हमारे पोटोहार में भी है, गिलगित चित्राल में, एंडेमिक एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो आयोडीन टेस्ट करने के लिए आप सब डॉक्टर हजरात हैं. सीरम T3 T4 TSH अभी भी एक्सपेंसिव, उस वक्त भी एक्सपेंसिव. मैं इसके फ्रांस के सेरिनो सिस्टम पे काम करता था, उस वक्त भी महंगा था ये. उसके लिए NIH जैसी इदारों ने WHO से रिलेटेड मिलकर यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ आयोडीन अफोर्डेबल टेस्ट डिज़ाइन किया. फिर हमने इसकी अफोर्डेबल किट बनाई और कम्युनिटी में लेकर के गए. ये वो दौर था लिपिडाल के इंजेक्शन लगते थे, लिपिडाल के कैप्सूल आयल, आयोडाइज साल्ट, अब जिसमें बड़े हुए छोटे से लिपिड, ये आयोडाइज साल्ट का दौर. ये जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक इज़ अ बर्निंग इशू. अब ये खड़ा हो रहा है और इसकी रेमेडियल प्रोसीजर्स भी आ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हर एक को अपने घरों में बोर को टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए. फर्स्ट ऑफ पिराटो उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन अगर आ जाए, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन आ जाए तो आपको किसी बड़ी साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कमर्शियल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है. जस्ट नीड बॉयलिंग. उसे आप बॉयल कर लीजिए, डिकेंट कर लें, फिल्टर कर लें और कंज्यूम कर लें. इट्स ओके. और अगर केमिकल कंटामिनेशन जैसे डॉक्टर फरमान है, लेड, निकल, मर्क्यूरी, कोबाल्ट, कैडमियम, अब पर्टिकुलरली आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक आ गया है तो इसके भी फिल्टर डिज़ाइन हो चुके हैं. वो फिल्टर कमर्शियली भी अवेलेबल हैं. कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको प्रॉपर देख लिया जाए, फिल्टर करके रीटेस्ट करवाया जाए, क्योंकि उसके भी किट्स अवेलेबल नहीं है. अगेन वी हैव टू गो. 15 लाख का फिल्टर मिलता है जो कि जी ये हम सर आपको इस सिस्टम के तहत अपनी रिसोर्सेज से हम बनाएंगे, आप यूज करोगे और आप टेस्ट कराओगे इंशाल्लाह. इनका आंसर तो आपने अभी भी नहीं दिया. जी आ रही है सर, आ रही है. आपने इनका जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो अभी तक नहीं आया. आर्सेनिक आ गया, लेकिन ये कहा है कि अगर होल प्लेस जो है सब में एक बोर करते हैं, उसमें आ गया, दूसरे में आ गया, तीसरे में, तो आप क्या उसका सोल्यूशन कैसे कहते हैं?